Yes, ma'am, I have done. Okay, Okay, students. ma'am. Yes, ma'am. Okay, students, we have done up to question number 17. Okay, question number 17 in this board paper of 2020. That is, explain the mode of C to positive ions, that is copper to positive, releasing IUDs, that is intrauterine devices, as a good contraceptive, and how is hormone releasing IUDs differ from it. ठीक है, तो कहते हैं कि कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज यानी इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो हैं वो कैसे डिफर करते हैं हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज से। तो उसका सेकंड पार्ट देखिए, व्हाई सहेली प्रिफर्ड contraceptive by women's, give any two reason, so that I have discussed on that thing. तो एक बार फिर से रीड करके बता रही हूँ आपको कि if we have to write the answer of the first part, that is the action of the copper releasing IUDs which act as a good contraceptive, then you have to write the first point, it increases the phagocytosis of the sperms. ठीक है, sperm eating कर लेता है, phagocytosis जो है sperms की होती है. And second one is that the copper ions, it suppress the motility and fertilizing capacity of the sperm. ठीक है, sperm जो है उसकी fertilizing capacity जो है वो यहाँ पर जो है कम कर देता है ये, और उसकी मोटालिटी जो है उसको डिक्रीज करता है. तो दो पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे, वन इज फेगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म and second one is that copper ions, they suppress the motility and fertilizing ability of the sperm. And what is special about the hormone releasing IUDs? So first you have to give the name of hormone releasing IUDs, that is progesterone, LNG20. ठीक है, और ये क्या करते हैं, दे मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस को अनसुटेबल बना देते हैं. एंड द सर्विक्स होस्टाइल टू द स्पर्म्स. ठीक है, द स्पर्म्स दे गेट ट्रैप्ड इन द cervix and they cannot easily move through the female genital tract. So that is the answer. And what is the answer of the B part? Why is Saheli a preferred contraceptive by women? So you have to write 2 points here. And what are these points? Number one, it is a once in a week pill. ठीक है, तो एक हफ्ते में एक बार इसको आपने लेना है, once a week pill के रूप में हम इसे जानते हैं. And second thing is that it has few side effect. इसके side effects जो हैं वो कम होते हैं. And it has high contraceptive value, और इसके contraceptive value जो है वो ज्यादा है. 3 पॉइंट यहाँ पे कंसीडर करेंगे. once a week pill सहेली is, and second one is a few side effects of this drug is here, and it also have the high contraceptive value. Okay student, question number 16 जो है that is not in the revised syllabus, so we are not going to do this question because it is from the chapter evolution. So chapter question number 17 we have done. Now question number 18 question is from the strategies of food enhancement, but that is not again in your syllabus, so we are again not doing question number 18. Now question number 19, on that day I have discussed why GMOs are so called. ठीक है, GMOs जो हैं उनको ऐसे किस GMO क्यों बोला जाता है, तो वो यहाँ पे हमने आपको बताया है कि GMOs जो हैं they are actually the genetically modified organisms. ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं. दे आर आल्सो नोन एज द ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स. इनको ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं. दे में बी प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंजाई, एनीथिंग जिनमें हमने क्या किया हुआ है, वी हैव डन जेनेटिक मैनिपुलेशंस इन देम. So these are genetically modified organisms. They are also known as transgenic animals. And here we have plants, animals, bacteria, fungi, and other type of microorganisms. This is the answer of the first part. List the different ways in which GMO plants have benefited and have become useful to humans. ठीक है, तो GMO plants जो हैं उसको हम किस तरीके से हम GMO plants जो है हमसे benefited होती हैं, and किस तरह से जो है वो human beings जो है उनके लिए useful है, that we have to write. So what is the first point? The first point is it makes crops more tolerant to abiotic stresses. ठीक है, क्रॉप्स जो है उनको एबायोटिक स्ट्रेसेस जो है उनके लिए टॉलरेंट बनाते हैं. तो दिस एबायोटिक स्ट्रेसेस में भी कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट, हीट एक्सेट्रा. एंड सेकंड पॉइंट इज मोस्ट ऑफ द जीएम प्लांट्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर पेस्ट रेजिस्टेंट. ज्यादातर जो जीएम प्लांट्स हैं वो पेस्ट रेजिस्टेंट हैं. तो इट इंक्रीजेस द क्रॉप प्रोडक्टिविटी एंड देयरफॉर इट आल्सो रिड्यूसेस द रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स.
ठीक है, हमें ज्यादा से ज्यादा केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज करने की जरूरत नहीं है। हमने प्लांट्स जो है उनको ही इस तरीके से तैयार किया है दैट द पैथोजन कैन नॉट सर्वाइव इन द बॉडी ऑफ द प्लांट। एंड द थर्ड पॉइंट दैट वी हैव टू राइट हियर इज इट हेल्प्स टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस ऑफ द क्रॉप। ठीक है, क्रॉप की हार्वेस्टिंग के बाद जो पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेज होते हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में कम होते हैं। And the fourth point is it increases efficiency of mineral usage by the plants. ठीक है, प्लांट्स के द्वारा जो मिनरल यूसेज होता है, मिनरल अपटेक जो होता है वो इन जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स में कम होता है। तो दिस प्रिवेंट अर्ली एग्जॉशन ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो इसलिए जो सॉइल है उसकी जो फर्टिलिटी है उसको ये क्या करते हैं, अर्ली एग्जॉस्ट होने से बचाते हैं। एंड वन अनदर पॉइंट यू कैन राइट दैट इट एनहांसेस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ अ फूड। ठीक है, फूड के जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको ये इनहेंस करते हैं। तो हियर यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ गोल्डन राइस, एंड गोल्डन राइस इज अ ट्रांसजेनिक वैरायटी ऑफ राइस। और इसमें हमने क्या किया हुआ है, विटामिन ए जो है उसमें ये राइस रिच है। तो जनरली व्हाट यू नो अबाउट राइस की राइस दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट, बट हियर along with the carbohydrates what is present, vitamin A is present. So this phenomenon is known as biofortification. Okay student, last point you have to consider here is GM is used to create tailor-made plants to supply alternative resources to industries. हमने ऐसे GM plants जो हैं या tailor-made plants जो हैं बनाए हैं जिससे कि इंडस्ट्रीज जो हैं उनको alternative resources मिलते हैं in the form of starch, fuels and pharmaceuticals. तो इन प्लांट से हम क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, एक्सेसिव अमाउंट में स्टार्च ऑब्टेन कर सकते हैं। एंड बायोफ्यूल्स, यू हैव हर्ड दिस नेम बायोफ्यूल्स, वो हम प्लांट से आइसोलेट कर सकते हैं। एंड फार्मास्यूटिकल्स के लिए इन प्लांट्स को हम यूज कर सकते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, डिफरेंशिएट बिटवीन पायोनियर, क्लाइमैक्स, कम्युनिटी एंड सीरीज। तो ये क्वेश्चन जो है दैट इज फ्रॉम द चैप्टर इकोसिस्टम, सो इट इज नॉट देयर इन द रिवाइज्ड सिलेबस, सो वी आर नॉट डूइंग दिस क्वेश्चन 20, but what is given in a choice in question number 20, and that is explain any 3 ways other than zoological parks, botanical gardens and wildlife safaris. ठीक है, तो कहते हैं कि इसमें आपको ये बताया गया है कि ex situ conservation which is a mode of conservation for the species of plants and animals that are facing the danger of extinction or they are the threatened species. तो उसके लिए 3 मेथड जो हैं, दे आर जोलॉजिकल पार्क्स, बोटेनिकल गार्डन्स या फिर वाइल्ड लाइफ सफारीज हम जिन्हें कहते हैं। इन तीनों मेथड्स के अलावा कौन से और एक्स सिटो कंजर्वेशन के मेथड हो सकते हैं? ठीक, तो इसके अंदर देखिए हम 3 मेथड जो है उनके नेम लिख सकते हैं। वन इज द सीड बैंक। ठीक है, सीड बैंक जो है उसके अंदर आप लिखेंगे कि सीड बैंक्स जो है उनमें हम जनरली सीड्स जो है हमको स्टोर करते हैं, and in this way we improve the ability of the seeds for their viable ability जो है उसको increase करते हैं। and seeds have the ability to show variable periods of dormancy, therefore many seed plants can be preserved in the form of seeds in small packets for a longer period. So places where we store these seeds, they are actually known as the seed bank or gene bank or germplasm bank. What is another technique? सीड बैंक के अलावा देन अदर टेक्निक इज नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन। तो क्रायो प्रिजर्वेशन का यहाँ पे क्या मतलब है कि हम क्या करते हैं, वी आर यूजिंग हियर लिक्विड नाइट्रोजन एट द टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस। एंड प्लांट्स जो हैं उनको उनके पार्ट्स को या फिर प्लांट्स जो हैं उनके पोलन्स को हम यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं at this very low temperature, that is -196 degree Celsius. So plants are propagated later on by using tissue culture technique. And this method of propagating plants by tissue culture is also known as micro propagation. ठीक है, थर्ड मेथड जो है एनिमल ट्रांसलोकेशन का है। तो एनिमल ट्रांसलोकेशन क्या है, इट इन्वॉल्व्स द रिलीज ऑफ द एनिमल्स इन अ न्यू लोकेलिटी। ठीक है, कहते हैं कि एनिमल का अगर अपना हैबिटेट जो है वो फेवरेबल नहीं है तो हम उस एनिमल को वहां से निकाल लेंगे और उसको एक न्यू लोकेलिटी में शिफ्ट कर देंगे। हाउ, इन व्हाट कंडीशंस वी डू दिस एनिमल ट्रांसलोकेशन? तो नंबर 1 इज a species is endemic or restricted to a particular region. अगर कोई endemic species है या एक particular region में ही पाई जाती है एंड हमारे लिए must है उस species को conserve करना, तो that endemic species we have to translocate. And second thing is that due to habitat destruction or unfavorable condition, if the unfavorable conditions are there in the habitat of the animal or habitat destruction is there, तो उस केस में जो है हम
उस एनिमल को ट्रांसलोकेट कर सकती हैं। और इफ देयर इज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इन एन एरिया, अगर किसी एरिया के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है एनिमल्स की या प्लांट्स की, तो उस केस में हम उस स्पीशीज को शिफ्ट करते हैं, तो दैट इज अ फेवरेबल मोड फॉर देयर कंजर्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, सी द नेक्स्ट वन. Next one, question number 21. As we have done this chapter, so I am going to discuss this question 21. Explain integrated organic farming as successful practiced by Ramesh Chandra Dagar, a farmer in Sonepat, Haryana. ठीक है, we have discussed this case study. तो उसमें आपको बताया गया था रमेश चंद्र डागर जो कि हरियाणा के हैं, तो उन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो मोड है उसको यहाँ पे उन्होंने अडॉप्ट किया. And what is this organic farming? So integrated organic farming is a cyclic zero waste processor. ठीक है, ये एक साइक्लिक मेथड है, ये एक जीरो वेस्ट प्रोसीजर है, where waste products from one process are cycled as a nutrients for other process. तो एक प्रोसेस के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनकी रिसाइकलिंग की जाती है और उसको जो है दूसरे प्रोसेस के अंदर यूज कर लिया जाता है. तो इससे फायदा क्या होता है? तो दिस अलाउज मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन कर सकती हैं. एंड इट आल्सो इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, प्रोडक्शन जो है वो भी इससे बढ़ता है. तो व्हाट इज द केस स्टडी अबाउट दिस रमेश चंद्र डागर? तो रमेश चंद्र डागर, ही इज अ रेजिडेंट ऑफ सोनीपत, हरियाणा, and he included so many business: beekeeping, dairy farm management, water harvesting, compositing, agriculture, in a chain of processes and which support each other and later on allow an extremely economical and sustainable venture. तो it requires no need of fertilizers, इसमें कोई केमिकल फर्टिलाइजर्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो साथ ही क्या कर रहा है, एनिमल्स को उसने रखा हुआ है, कैटल्स को रखा हुआ है, तो कैटल डंग जो है उसको एज अ मैन्योर यूज कर ले रहा है. क्रॉप वेस्ट जो है उससे वो कंपोस्ट तैयार कर ले रहा है. एंड उसके बाद वो कहते हैं कि इट कैन बी यूज्ड एज अ नेचुरल फर्टिलाइजर. And later on, natural gas can also be obtained from the slurry of this waste for satisfying the energy needs of the farmer. And later on, ये जो डागर थे, इन्होंने एक इंस्टीट्यूट जो एक इंस्टीट्यूशन बनाया, and that is हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब. And with the membership of how many farmers? So 5,000 farmers are there. He spread the information regarding the practice of the integrated organic farming that you have to write in question number 21. ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कंप्लीट है. नाउ सेक्शन डी देखिए आप. तो सेक्शन डी जो है उसमें स्टडी द डायग्राम showing the entry of HIV into the human body and the processes that are followed. So there is one diagram visible on your screen और उसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताया गया है द HIV वायरस का. तो here some of the labeling is not mentioned here and instead of that some alphabets are there A B C. तो आपने उनके आंसर देने हैं. तो उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके अंदर आपसे पूछा गया है नेम द ह्यूमन सेल कैपिटल A HIV एंटर्स इट. ठीक है, तो जहां पर कैपिटल A लिखा है, ध्यान से देखिए डायग्राम में, वहां पर आपने बताना है कि कौन सा ह्यूमन सेल है जिसमें HIV वायरस जो है वो एंटर कर रहा है. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे HIV वायरस जिस A सेल के अंदर एंटर कर रहा है, तो दैट A सेल इज एक्चुअली द हेल्पर T लिम्फोसाइट्स. ये हेल्पर T सेल्स हैं, हेल्पर T सेल्स के अंदर वो एंटर कर जाएगा. तो कहते हैं कि व्हाट इज B यहाँ पे क्या है? तो B इज द RNA, इट इज द RNA. एंड व्हाट इज C? तो C यहाँ पे क्या है? तो C इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है जो फिर क्या करता है, RNA जो है उसको डबल स्टैंडर्ड DNA में लेटर ऑन वो कन्वर्ट कर देगा. एंड वायरल DNA देखिए लिखा है इनकॉर्पोरेट्स इनटू द होस्ट जीनोम. और वहां पर जो है वायरल DNA ये कैसे बना है? तो देयर इज वन प्रोसेस एंड दैट इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड वन एंजाइम इज इन्वॉल्वड, इट इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है वो क्या करता है, आगे जो है उसको DNA में कन्वर्ट कर देता है और वायरल DNA जो है वो होस्ट जीनोम में इनकॉर्पोरेट हो जाता है एंड इस तरह से डिजीज आगे स्प्रेड होती है. तो फिर से सुन लेंगे, A पे आपने लिखना है हेल्पर T सेल्स and B जो है it is the RNA and C is the reverse transcriptase. So such type of diagrammatic question can be the part of examination. Question number 23 देखिए. Question number 23. Following a road accident, 4 injured persons were brought to a nearby clinic.
द डॉक्टर इमीडिएटली इंजेक्टेड देम विद द टेटनस एंटीटॉक्सिन। ठीक है, कहते हैं कि 4 लोग जो है वो एक्सीडेंट में पाए गए और उनको कहाँ ले जाया गया, एक नियर बाय क्लिनिक में ले जाया गया। डॉक्टर जो है उनको एकदम से टेटनस एंटीटॉक्सिन देता है। तो व्हाट इज टेटनस एंटीटॉक्सिन? यहाँ पे टेटनस एंटीटॉक्सिन क्या है? तो देखिए, आपने पैसिव इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। तो याद रखिए कि टेटनस एंटीटॉक्सिन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज। ठीक है, तो यहाँ पे इमीडिएट एक्शन जो है वो रिक्वायर्ड है, तो इसलिए वो कहता है कि टेटनस एंटीटॉक्सिन जो है उसमें प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज है, और वो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज वाला जो इंजेक्शन है वो उस जो भी इंजर्ड पर्सन है उनको दिया जाएगा। व्हाई वर द इंजर्ड इमीडिएटली इंजेक्टेड विद दिस एंटीटॉक्सिन? तो कहते हैं कि जो इंजर्ड लोग हैं उनको जो है ये एंटीटॉक्सिन क्यों दिया गया है? तो उसमें आपको इसके आंसर में लिखना है कि क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई, इट इज एक्चुअली द बैक्टीरिया दैट एंटर्स इनटू द बॉडी थ्रू कट और वुंड्स और ऑब्जर्व्स नर्व सिग्नलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिजीज जो टेटनस है वो एक बैक्टीरियम की हेल्प से होती है, एंड दैट बैक्टीरियम इज नोन एज क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई। तो ये जो बैक्टीरिया है वो कहते हैं कि अगर बॉडी के अंदर कहीं पे कट्स हैं या कोई इंजर्ड पोर्शंस हैं, वहां से ये बॉडी में एंटर करता है और नर्व सिग्नल्स जो है उनके ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम करता है। तो एंटीटॉक्सिन क्या करता है? व्हाट इज द रोल ऑफ एंटीटॉक्सिन? तो दिस एंटीटॉक्सिन इट न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ द टेटनस टॉक्सिन इन द बॉडी। बॉडी के अंदर टेटनस का जो टॉक्सिन है उसके इफेक्ट को ये नलिफाइड कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो एज द इंजर्ड पर्सन रिक्वायर इमीडिएट इम्यूनाइजेशन, जो इंजर्ड पर्सन है उनको इमीडिएट इम्यूनाइजेशन की जरूरत है। सो इन दिस केस प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज दे आर डिलीवर्ड टू द पेशेंट। इसलिए जो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज है वो पेशेंट को दी जाती है। एंड सीधा सी द थर्ड पार्ट, नेम द काइंड ऑफ इम्यूनिटी दिस इंजेक्शन प्रोवाइडेड। तो पहले ही बता चुकी हूँ मैं कि यहाँ पे जो इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है दैट इज एक्चुअली द पैसिव इम्यूनिटी। तो हमेशा याद रखिए कि इन केस ऑफ पैसिव इम्यूनिटी हमने प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज रखी हुई होती हैं, एंड प्री फॉर्म एंटीबॉडीज जो हैं वो इसलिए इस तरह के पेशेंट्स को दी जाती हैं बिकॉज इमीडिएट हेल्प इज रिक्वायर्ड। तो इफ वी एंटर इंस्टेड ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, अगर हम एक्टिव इम्यूनिटी की बात करते हैं तो इट टेक्स सम टाइम एंड इन दैट सिचुएशन द पेशेंट मे डाई आल्सो। So instead of active immunity, we here use the passive immunity. Okay, students, see the question number 24. Indirect question is this: the population of a metro city experiences fluctuation in its population density over a period of time. कहता है कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और उसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसके अंदर काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस देखी गई हैं कुछ टाइम पीरियड के दौरान। When does the population in a metro city tend to increase? कहते हैं कि किसी भी मेट्रो सिटी जो है उसमें किसी मेट्रो सिटी की जो पॉपुलेशन है वो एकदम से कैसे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है तो आपने जो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स पढ़े हुए हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के, तो उनकी बेसिस पे आपने आंसर देना है। तो व्हेन डज द पॉपुलेशन इन अ मेट्रो सिटी टेंड टू इंक्रीज, किसी भी मेट्रो सिटी के अंदर अचानक से पॉपुलेशन कब बढ़ जाती है? तो इसके आंसर में आप लिखेंगे कि पॉपुलेशन इन अ मेट्रो सिटी विल टेंड टू इंक्रीज when natality and immigration will be higher। ठीक है, अगर natality या immigration के केसेस जो हैं हायर हैं तो उस केस में पॉपुलेशन जो है वो किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी की भी इंक्रीज हो जाएगी। एंड सी द बी पार्ट, when does the population in a metro city tend to decline? किसी भी मेट्रो सिटी जो है उसकी पॉपुलेशन कब डिक्लाइन होती है, कब कम हो जाती है? वो इसके आंसर में आप लिखोगे कि जब मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होते हैं, मतलब ज्यादा पर्सन्स की डेथ होती है, और अगर ई माइग्रेशन कर जाती हैं काफी सारे सेक्शन जो है पॉपुलेशन का वो ई माइग्रेट कर जाता है, तो उस केस में पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो कम रहेगी। ठीक है, तो फर्स्ट केस में आपने यही लिखना है कि फर्स्ट केस में आप लिखोगे नेटालिटी एंड इमाइग्रेशन, एंड सेकंड केस जो है कि डिक्लाइन कब होनी है मेट्रोपॉलिटन सिटी में, देन यू हैव टू राइट मोर्टेलिटी एंड इमाइग्रेशन। See the third part, if capital N is the population density at time t, write the population density at the time t plus 1। तो उस केस में वो कहते हैं कि अगर किसी भी एरिया के अंदर कैपिटल N जो है वो टाइम t के साथ उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो राइट द पॉपुलेशन डेंसिटी एट द टाइम t plus 1। तो t plus 1 टाइम पे जो है पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी? अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो उसके अंदर देयर इज वन इक्वेशन गिवन, तो उस इक्वेशन को अपने यहाँ पे लिखना है दैट कैपिटल N
T+1 इज इक्वल टू एन टी प्लस ब्रैकेट में हमने लिखा था B प्लस आई माइनस D प्लस ई। ठीक है बेटे, B यहाँ पे बर्थ रेट है, I यहाँ पे इमाइग्रेशन है, D यहाँ पे डेथ रेट है और E यहाँ पे जो है ई माइग्रेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उनको स्पेसिफिक नेम दिए गए हैं, निटालिटी, मोर्टालिटी। तो यहाँ पे N+1 इज पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम T+1, NT क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम T, B is the birth rate on natality, I is the immigration, D is the mortality and E is the e-migration। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर है। फर्स्ट के अंदर आपने नेटालिटी प्लस इमाइग्रेशन लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन 24 का बी पार्ट जो है उसके अंदर आपने लिखना है मॉर्टेलिटी एंड ई माइग्रेशन के बारे में लिखना है। एंड थर्ड में आपने वो इक्वेशन देनी है जो पॉपुलेशन डेंसिटीज के अंदर आपको दी गई है। ठीक है, तो दिस इज अ 3 मार्क क्वेश्चन। अब हम सेक्शन ई पर हैं एंड दीज आर द 5 मार्क क्वेश्चन। डिटेल में हम इसका आंसर देंगे। देखिए, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस इन एन एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपने मेगास्पोरोजेनेसिस का जो पूरा प्रोसेस है उसको आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल मेगास्पोरोजेनेसिस इज एक्चुअली द फॉर्मेशन ऑफ द मेगास्पोर्स। ठीक है, फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। तो मेगास्पोर मदर सेल जो है उसमें से जो 4 मेगास्पोर्स बनते हैं उनके बारे में आपने यहाँ पे लिखना है। तो 4 मेगास्पोर्स जो है बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस बनती हैं एंड आउट ऑफ दिस 4 मेगास्पोर्स 1 मेगास्पोर जो है वो डीजेनरेट कर जाता है। ठीक है, नहीं 3 मेगास्पोर डीजेनरेट कर जाते हैं एंड 1 मेगास्पोर जो है वो सर्वाइविंग होता है। ठीक है बेटे, तो थोड़ा सा उसके बारे में लिख देंगे शॉर्ट में कि मेगास्पोर मदर सेल इज अ लार्ज सेल and it contains a dense cytoplasm. How you identify कि this is the megaspore mother cell? तो उसका dense cytoplasm होता है, prominent nucleus होता है। then क्या होता है, ये megaspore mother cells जो है वो meiosis में जाते हैं and then they produce 4 megaspore। and what happen in majority of the flowering plant, out of these 4 megaspore 3 degenerate and 1 megaspore it remains। तो ये functional megaspore जो है इसी को हम क्या कहते हैं, female gametophyte। ठीक है, वन डायग्राम इज ऑल्सो गिवन इन योर बुक। तो उस डायग्राम की आप हेल्प ले लें और उस डायग्राम के बेसिस पे आप सारी जो स्टेजेस है मेगास्पोर डेवलपमेंट की वो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। और उसके बाद फंक्शनल मेगास्पोर जो है उसमें भी फिर आगे वैरायटी ऑफ इवेंट्स होते हैं, कैसे वो सर्वाइव करते हैं वो आपने लिखना है इसके अंदर। और लास्ट में आप इसका देखिए बी पार्ट, उसमें आपसे उसने पूछा गया है बी पार्ट के अंदर कि draw a diagram of the mature embryo sac of angiosperm and label its 6 part। ठीक है, तो उसके अंदर आपने जो एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बनाना है वो आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। और एम्ब्रियो सैक का जो डायग्राम है मैच्योर एम्ब्रियो सैक का, उसके सारे पार्ट्स जो है उनको यहाँ पर आपने जो है मेंशन कर देना है। तो उसके 2 तरीके हैं, आपका एम्ब्रियो सैक जो है उसका डायरेक्ट डायग्राम आप बता दें, या फिर अगर ओव्यूल आप बना रहे हैं एनाट्रोपस ओव्यूल तो उसके अंदर एम्ब्रियो सैक जो है उसके पार्ट्स को आप मेंशन कर सकते हैं, दैट यू हैव टू डू हियर। ठीक बेटे, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, उसी के साथ देयर इज वन अनदर क्वेश्चन और उसमें आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में से ये क्वेश्चन लिया गया है। Where and how in the testis process of spermatogenesis occurs in human। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी। पहले तो आपने ये बताना है कि कहाँ पर होता है और कैसे होता है टेस्टिस के अंदर, कौन सा प्रोसेस, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस। तो देखिए टेस्टिस का आप स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखोगे कि टेस्टिस जो है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। तो यू हैव टू राइट कि 1 पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट इन मेल एंड इनसाइड द टेस्टिस व्हाट इज प्रेजेंट, यू नो दैट कि उसके अंदर टेस्टाकुलर लॉब्यूल्स प्रेजेंट है। एंड टेस्टाकुलर लॉब्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स आर देयर। ठीक है, तो इनसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स टेक्स प्लेस एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर आप स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो उसमें देखिए आप इसको अगर कंसाइज फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस, वन इज फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटिड्स एंड अनदर वन इज स्पर्मियोजेनेसिस। तो आपने दोनों ही बताना है, स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, स्पर्मियोजेनेसिस कैसे हुआ है, वो सारा आप लिखेंगे। वो सब कुछ लिखेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान जो है वो डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया आर देयर, जो मेल जर्म सेल्स होते हैं दे आर इंक्रीजेस इन साइज, देन दे लेटर बिकम एट डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर ये जो डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं उनमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुई। ठीक बेटे, और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो है व्हाट काइंड ऑफ डिवीजन इट इज अ रिडक्शनल डिवीजन and as a result of this what happened, 2 equal haploid secondary spermatocytes they are formed।
और उसके बाद वो कहते हैं कि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं दे आल्सो अंडरगो सेकंड मियोटिक डिवीजन, उसमें सेकंड मियोटिक डिवीजन हुई है एंड सेकंड मियोटिक डिवीजन के बाद क्या बने हैं, तो 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दीज 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स दे आर ऑफ द इक्वल साइज, इक्वल साइज के होंगे। फिर आपने बता देना है कि ये स्पर्मेटिड्स जो है वो स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिस प्रोसेस से होते हैं दैट इज नोन एज स्पर्मीओजेनेसिस। ठीक बेटे, उसके बाद आप एक चीज और लिख देंगे स्पर्मीओजेनेसिस के अलावा कि ये जो स्पर्म्स होते हैं उनका नरिशमेंट जो है वो कैसे होता है वो भी आप लिख देंगे यहाँ पर, और उस प्रोसेस को क्या नेम दिया गया है वो सारा आपने स्पर्मिएशन एंड स्पर्मियोजेनेसिस उन दोनों के बारे में डिटेल में आपने यहाँ पर बता देना है। और दूसरी बात है बिकॉज इट इज अ 5 मार्क क्वेश्चन, तो यू हैव टू गिव द फ्लो चार्ट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस अलोंग विद दिस, इसके साथ आप उसका फ्लो चार्ट बना दें। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट जो है टॉपर शीट के अंदर उसने स्टूडेंट ने जो है इसका फ्लो चार्ट बनाने के अलावा स्पर्म जो है उसका भी यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, वो आप यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ठीक बेटे, ह्यूमन स्पर्म का नीचे पूछा भी गया डायग्राम, तो ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम बना के उसके 4 पार्ट्स को आपने लेबल करना है। तो 4 पार्ट्स में एक्रोसोम आप जरूर लेबल करेंगे, इट इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर। फिर आप उसका न्यूक्लियस जो है शो करें एंड देन यू हैव टू मिडल रीजन जो है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल शेप है, ये आपने जरूर बताने हैं। एंड देन उसकी वाइगोरियस टेल बतानी है जिसका इंपॉर्टेंट रोल है इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो हेड, मिडल पीस एंड टेल और प्लस उनके कंपोनेंट्स जो हैं वो आपके डायग्राम में होने चाहिए। ठीक बेटे, क्वेश्चन नंबर 26 का ए पार्ट देखिए, व्हाई डिड टी एच मॉर्गन सेलेक्ट ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि मॉर्गन जो थे उन्होंने ड्रोसोफिला को ही क्यों सिलेक्ट किया उनके एक्सपेरिमेंट के लिए। तो अगर आपने चैप्टर अच्छे से रीड किया हुआ है तो उसमें 4 to 5 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट उसमें आप लिखोगे कि इट ब्रीड्स वेरी क्विकली। ठीक है, एकदम से जो है उसकी ब्रीडिंग जो है वो पॉसिबल है, फ्लाइज जो है वो फटाफट अनदर फ्लाइज को बर्थ देती हैं। एंड सेकंड पॉइंट आप लिखोगे दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स, 2 वीक्स के अंदर ही उनका लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो देयरफॉर ब्रीडिंग कैन बी डन थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल जो है वो ब्रीडिंग उनके अंदर होती रहती है। एंड व्हाट इज योर थर्ड पॉइंट, अ सिंगल मेटिंग कुड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज, एक ही मेटिंग के अंदर जो है आपको काफी सारी प्रोजेनी फ्लाइज मिलती हैं। देन यू हैव टू राइट कि दे कैन बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी। ठीक है, लेबोरेटरी में कोई एक्सपेंसिव कल्चर मीडियम की जरूरत नहीं है, आप कोई भी सिंपल सिंथेटिक मीडियम जो है उससे इतनी सारी फ्लाइज जो है हमको अट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड देन इजिली डिस्टिंग्विशेबल मेल एंड फीमेल, ये भी आपको मालूम है कि मेल छोटे साइज के हैं एंड फीमेल जो है वो बड़े साइज की हैं। और इसके अलावा आप लिखो कि हेरिडिटरी वेरिएशंस कैन बी क्लियरली सीन विद लो पावर माइक्रोस्कोप। ठीक है, जो भी हेरिडिटरी वेरिएशंस है उनकी आई कलर को लेकर, जैसे कईयों में रेड आई कलर होता है, कईयों में व्हाइट आई कलर है, तो इस तरह की विंग्स को लेके भी हो सकती हैं, कईयों में स्मॉल विंग्स है, लार्ज विंग्स हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आप लिख देंगे कि हेरिडिटरी वेरिएशंस जो उनको लो पावर माइक्रोस्कोप में भी स्टडी किया जा सकता है। उसके बाद देखिए, हाउ डिड ही डिसप्रूव मेंडल डाइहाइब्रिड एक्टिव फिनोटाइपिक रेशियो of 9:3:3:1 and explain give reasons। ठीक है, तो इसमें आपको देखो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, तो कहते हैं कि मेंडल का जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है उसमें हमेशा रेशो कौन सी आती है, 9:3:3:1 की रेशो आती है। पर मॉर्गन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कौन सा ऐसा कंसेप्ट दिया जिससे कि ये 9:3:3:1 रेशो जो कि टिपिकल डाइहाइब्रिड रेशो है वो एग्जैक्टली उन केसेस में हमें नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसका मतलब आपने यहाँ पर जो है क्या एक्सप्लेन करने हैं, आपने यहाँ पे लिंकेज के केसेस एक्सप्लेन करने हैं। तो उसमें आपने ये बताना है कि कई बार कंप्लीट लिंकेज होता है, कई बार इनकम्प्लीट लिंकेज होता है एंड इट डिपेंड्स अपॉन द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। तो अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम है, बहुत कम है, then that is the case of the complete linkage. And if the value of the recombination frequency is intermediate, तो उस केस में भी लिंकेज रहेगा पर वो इनकम्प्लीट लिंकेज होगा। फिर आप लिखोगे कि जो ये जो लिंकेज है उसके अंदर मोस्टली, ठीक है, आप ये लिखोगे कि जो पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं वो आपको जो है F2 जनरेशन के अंदर भी एज इट इज नजर आते हैं, और रिकॉम्बिनेशन जो है वहां पे एग्जैक्टली या तो एब्सेंट रहता है या फिर वेरी लिटिल रिकॉम्बिनेशन इज देयर। And you have to write कि non-parental characters they cannot be seen in the F2 generation, non-parental characters यहाँ पर हमें जो है वो दिखाई नहीं देते।
तो अपने इस आंसर को सपोर्ट करने के लिए आप यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स जो है वो देंगे। और लास्ट में आपने जो है स्टूवर्ट के बारे में भी लिखना है कि उनके जो स्टूडेंट थे स्टूवर्ट, उन्होंने ये बताया था कि इफ द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है, अगर जीन्स के एलील्स जो है वो होमोलॉगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज एलिलिक पेयर्स if they are very less, in that case recombination cannot take place and the parental genes they move as it is on the another chromatid। जो पेरेंटल जीन्स है वो एज इट इज ही दूसरे क्रोमेटिड में चले जाते हैं और इस तरह के केसेस जो हमको लिंक्ड जो है लिंकेज के केसेस होते हैं और ऐसे जीन्स को हम लिंक्ड जीन्स कहते हैं। तो ये यहाँ पे आपने लिखना है। अगर आपने अपनी बुक अच्छे से देखी हुई है तो उसमें लिंकेज से रिलेटेड क्रॉसेस उन्होंने ड्रॉ करके दिखाए हुए हैं आपको, उनमें से कोई भी एक क्रॉस जो है उसके बारे में आप बता देंगे, ठीक है। तो उसमें उन्होंने जो है आई कलर को लेके और एक में विंग्स जो है उनको लेके उन्होंने बनाया हुआ है, मिनिएचर विंग्स है, और ये वाले जो बुक में एग्जांपल दिए हैं वो यहाँ पे कोड करके आपने लिखने हैं, ठीक बेटे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें सभी स्टूडेंट, लिस्ट एनी 4 मेजर गोल्स ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपने गोल्स लिखने हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। तो फर्स्ट गोल हो जाएगा टू आइडेंटिफाई ऑल द एस्टिमेटेड जीन्स इन द ह्यूमन डीएनए। ह्यूमन डीएनए में प्रेजेंट सारे के सारे जीन्स जो है उनको आइडेंटिफाई करना। एंड व्हाट इज द सेकंड वन, टू डिटरमिन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स दैट मेक अप द ह्यूमन डीएनए, ठीक है। ह्यूमन डीएनए को बनाने वाले 3 मिलियन केमिकल बेस पेयर्स जो है उनके सीक्वेंसेस को फाइंड आउट करना। थर्ड पॉइंट इज टू स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेसेस, डेटाबेसेस की फॉर्म में इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। देन टू इम्प्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस के टूल्स को इम्प्रूव करना ताकि जो इंफॉर्मेशन स्टोर की है वो बीच में से गायब ना हो जाए। टू ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स, ठीक है, जो भी टेक्नोलॉजीज है उनको फिर दूसरे सेक्टर्स जो हैं उसके अंदर जो है उन टेक्नोलॉजीज को आगे ट्रांसमिट करना। टू एड्रेस द एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज दैट मे अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट। उसके बाद वो कहते हैं कि जो भी एथिकल, लीगल या फिर सोशल इश्यूज हैं उनको जो है इस प्रोजेक्ट से जो भी पता लगे हैं वो सारे जो हैं उनके बारे में भी बताया जाएगा, ठीक है। गोल्स आपने एज इट इज लिख देने। देखिए सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, राइट एनी 4 ways द नॉलेज फ्रॉम द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर ह्यूमंस। कहता है कि कौन से ऐसे 4 जो है एडवांटेजेस है यहाँ पर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, ठीक है, जो कि ह्यूमंस के लिए सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे देखो एडवांटेजेस ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो उसमें देखिए इट हैज लेड टू द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स इन जनरल। इससे हमें ह्यूमन बायोलॉजी और जेनेटिक्स जो है उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ती है। सेकेंड पॉइंट में इट हैज पेव्ड द वे फॉर पर्सनलाइज्ड मेडिसिन इन फ्यूचर बेस्ड ऑन वंस ओन जीनोम, ठीक है। तो कहते हैं कि जब हमें जीन्स के बारे में सारा कुछ पता लग जाता है तो उसके बाद जो है जो भी हम इसके रिलेटेड मेडिसिन या डायग्नोसिस के लिए यूज करना चाहते हैं वो हम तैयार कर सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट में हम लिखेंगे इट हैज शेड अ लॉट ऑफ लाइट ऑन ह्यूमन एवोल्यूशन एंड फाइलोजेनेटिक्स, ठीक है। इसके अलावा हमें ह्यूमंस के एवोल्यूशन के बारे में पता लगता है इससे, और उसकी फाइलोजेनी के बारे में पता लगता है। तो फाइलोजेनी वर्ड का यहाँ पे मीनिंग है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो ये सारे आंसर की जो है वो आपको हैंड ओवर कर दी जाएगी, आपने उसको अच्छे से स्टडी करके उसमें से आंसर्स जो हैं उनको रीड करने। देखिए सी पार्ट में आपसे पूछा गया है एक्सप्लेन BAC एंड मेंशन इट्स इंपॉर्टेंस, ठीक है। BAC वर्ड का क्या मतलब है यहाँ पे, तो BAC हियर स्टैंड फॉर बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, ठीक है। और उसके बाद कहते हैं कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो इट इज एन आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड वेक्टर कंटेनिंग द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एंड सेलेक्टेबल मार्कर फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो BAC जो है जिसे हम बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कहते हैं वो एक्चुअली आर्टिफिशियल तरीके से कंस्ट्रक्ट किए हुए ऐसे वेक्टर्स हैं जिनके अंदर 2 चीजें हैं, एक तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन उसमें प्रेजेंट है और एक उसके अंदर सेलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट है। तो इसकी एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज ये है कि इट इज कैपेबल ऑफ कैरिंग लार्ज DNA फ्रेगमेंट्स एंड कैन इजिली रेप्लिकेट, एंड उसके बाद हम इसको किसी भी बैक्टीरियल सेल में आसानी से रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो ये लार्ज जो है DNA जिसके डायमेंशंस काफी लार्ज है उसको कैरी कर सकते हैं। उसके बाद बिकॉज इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट है तो उस वजह से जो है इसका रेप्लिकेशन इजीली हो सकता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि इट इज यूज्ड इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट फॉर क्लोनिंग लार्ज चंक्स ऑफ फ्रेगमेंटेड ह्यूमन जीनोम विद ईज।
तो जिनको हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से जो डीएनए के हमने फ्रैगमेंट्स तैयार कर लिए थे, उन फ्रैगमेंट्स को आगे होस्ट सेल के अंदर कैरी करने के लिए हमने जो है ये बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स जो है हमको यूज किया। ठीक बेटे, तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, नेम द इंसेक्ट दैट अटैक कॉटन क्रॉप्स। ठीक है, एंड कॉजेज टू डैमेज द क्रॉप।